ملک میں ایک شہنشاہ تھا کہ اس کا عدل و انصاف نوشیرواں جیسا اور اس کی سخاوت حاتم طائی جیسی تھی۔ اس کا نام آزاد بخت تھا۔ اس کا پایا تخت قسطنطنیہ تھا۔ اس کے وقت میں رعایا آباد، خزانہ بھرا ہوا، لشکر چاکو چوبند، غریب غربا خوشحال اور ایسے چین سے زندگی گزارا کرتے اور خوشی سے رہتے کہ ہر ایک کے گھر میں دن عید اور رات شب برات تھی، اور جتنے چور اچکے، جیب کترے اور اٹھائی گیر دغاباز تھے، سب کو اس نے نیست و نابود کر کے بے نام و نشان کر دیا تھا۔ اپنے ملک میں ان کا نام و نشان تک نہ رکھا تھا۔ ساری رات دروازے گھروں کے بند نہ ہوتے اور دکانیں بازار کی ہمیشہ کھلی رہتی۔ راہ چلتے مسافر جنگلوں اور میدانوں میں سونا اچھالتے پھرتے۔ کوئی کسی کو نہ پوچھتا تھا کہ تمہارے منہ میں دانت ہیں اور کہاں جاتے ہو۔ غرض یہ کہ ہر طرف چین اور سکون ہی سکون تھا۔ اس بادشاہ کے عمل میں ہزاروں شہر تھے اور کئی سلطان نال بندی دیتے۔ ایسی بڑی سلطنت پر ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل کو خدا کی یاد اور بندگی سے غافل نہ کرتا تھا۔ دنیا کا چین، آرام، سکون اور ہر نعمت موجود تھی، لیکن بیٹے کی طرف سے محروم تھا کہ جو زندگی کا پھل ہے اس کی قسمت کے باغ میں نہیں تھا۔ اسی خاطر ہمیشہ فکر مند اور پریشان رہتا۔ پانچوں وقت کی نماز کے بعد اپنے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا کہ اے اللہ، عاجز کو تو نے عنایت سے اپنی سب کچھ دیا، لیکن اس اندھیرے گھر میں ایک چراغ نہ دیا۔ بس یہی ارمان باقی ہے کہ ایک بیٹا جیتا جاگتا مجھے دے دے، میرا نام اور اس سلطنت کا نشان باقی رہے۔ اسی امید میں بادشاہ کی عمر 40 برس کی ہو گئی۔ ایک دن شیش محل میں نماز ادا کر کے وظیفہ پڑھ رہے تھے کہ ایک بار آئینے کی طرف جو دیکھا تو ایک سفید بال مونچھوں میں نظر آیا جو مکیش کی طرح چمک رہا تھا۔ بادشاہ دیکھ کر ابدیدہ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ٹھنڈی سانس بھری، پھر دل میں سوچا کہ کیا افسوس تو نے عمر اتنی ناحق برباد کی اور اس دنیا کی ہرس میں ایک عالم کو زیر و زبر کیا اور ملک جو لیا اب تیرے کس کام آئے گا؟ آخر یہ سارا مال اسباب کوئی دوسرا آئے گا تو تجھے موت کا پیغام آ چکا ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اب بدن کی طاقت کم ہو رہی ہے۔ اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ میری تقدیر میں بیٹا نہیں لکھا کہ وارث مجھے ملے اور مجھے ایک روز مرنا ہے اور سب کچھ یہیں چھوڑ جانا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں اسے پہلے ہی چھوڑ دوں اور باقی زندگی اپنے خدا کی یاد میں گزار دوں۔ یہ بات اپنے دل میں بٹھا کر ایک باغ میں جا کر سب محل والوں کو جواب دے کر فرمایا کہ آج سے کوئی میرے پاس نہ آئے، سب دیوانے عام میں آ جایا کریں اور اپنے کام میں مستعد رہیں۔ یہ کہہ کر آپ ایک مکان میں جا بیٹھا اور مسلح بچھا کر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ سوائے رونے اور آہیں بھرنے کے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اسی طرح بادشاہ آزاد بخت کو کئی روز گزر گئے۔ شام کو روزہ کھولنے کے وقت ایک چوہارا اور 3 گھونٹ پانی پی لیتا اور تمام دن رات جائے نماز پر پڑا رہتا۔ اس بات کا باہر چرچا پھیلا۔ رفتہ رفتہ تمام ملکوں میں خبر ہو گئی کہ بادشاہ نے بادشاہ سے ہاتھ کھینچ کر تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ چاروں طرف سے غنیموں اور مفسدوں نے سر اٹھایا اور اپنے حد سے بڑھنے لگے۔ جس نے چاہا ملک دبا لیا اور سر انجام سرکشی کا کیا ہوا؟ جہاں کئی حاکم تھے ان کے حکم میں خلل عظیم واقع ہوا، یعنی انہیں بادشاہ سے نافرمانی کرنے لگے۔ جب ہر صوبے سے بدعملی کی خبریں پہنچیں تو درباری امراء جتنے تھے سب آپس میں جمع ہوئے اور صلاح مشورہ کرنے لگے۔ آخر یہ تجویز قرار پائی کہ نواب، وزیر عاقل اور دانا اور بادشاہ کے مقرب اور معتمد اور درجے میں جو سب سے بڑا ہے اس کی خدمت میں چلیں اور دیکھیں کہ وہ کیا مناسب جان کر رویہ اختیار کرتا ہے۔ سب ہی امیر وزیر کے پاس آئے اور کہا کہ بادشاہ کی اس صورتحال سے اگر وہ غافل ہو گیا ہے تو ملک کا کیا انجام ہوگا؟ ملک تو مفت میں جاتا رہے گا اور پھر واپس آنا مشکل ہے۔ وزیر پرانا، نمک حلال اور عقلمند بھی تھا اور اپنے نام کی طرح اچھا بھی تھا۔ اس نے کہا اگر بادشاہ نے اپنے آپ پاس آنے کو منع کیا ہے لیکن پھر بھی میں چلتا ہوں۔ بادشاہ کے خیال میں جو روبرو بلائے، یہ کہہ کر وہ سب کو اپنے ساتھ دیوان عام تک لا کر ان کو وہاں چھوڑا اور خود دیوان خاص میں بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ کی خدمت میں جا کہلا بھیجا کہ یہ غلام حاضر ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کئی دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں ہے، امید کرتا ہوں کہ ایک نظر آپ مجھے دیکھ کر قدم بوسی کی اجازت دیں گے۔ بادشاہ کو وزیر کے آنے کی اطلاع ملی۔ بادشاہ اس کی نیک نامی اور جان نثاری اور وفاداری کو اچھی طرح جانتے تھے اور اس کی ہر بات مانتے تھے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنے ملازم سے کہا کہ ٹھیک ہے، انہیں بلاؤ۔ وزیر ان کے حضور میں آیا، آداب بجا لایا اور دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ دیکھا تو بادشاہ کی عجیب سی صورت تھی کہ زاروں کے تار رو رہے تھے اور دبلے پتلے، آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوئے تھے اور چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ خرد مند کو تاب نہ رہی، بے اختیار دوڑ کر بادشاہ کے قدموں میں جا گرا۔
बादशाह ने हाथ से उसका सर उठाया और भरमाया, खातिर जमा हुई, अब जाओ, ज्यादा मुझे ना सताओ, तुमने मेरा चेहरा देखना था, देख लिया, तुम सल्तनत की फिक्र करो। खुर्दमंद यानी वजीर सुनकर ताड़े मार मार कर रोने लगा और अर्ज की, गुलाम को आपकी सच्चे दिल से सलामती चाहिए, हमेशा से बादशाहत मैसर है, लेकिन जहां पना की इस तरह गोशे नशीनी से तमाम मुल्क अजीबो गरीब हालात में पड़ गया है और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बादशाह ने पूछा, आज तुम्हारे जहन में ये ख्याल कैसे आया? वजीर कहने लगा, अगर आप भी मुझे अपने राज में शरीक करें तो बेहतर है, कुछ मेरी भी नाकिस अकल में आए कि आपने ऐसी गोशा नशीनी क्यों इख्तियार की। गुलामों को जो इतनी सरफराजियां बख्शी हैं, क्या इसी दिन के वास्ते कि आप फिक्रमंद रहें और हम ऐशो इशरत में गुजारें? बादशाह सलामत, ऐसा होना अच्छा नहीं, हम आपके नमक ख्वार हैं, हमें आपके गम में भी बराबर का शरीक होना चाहिए। बादशाह ने कहा, तुम सच कहते हो, पर जो फिक्र और परेशानी मेरे दिल के अंदर है उसकी कोई तदबीर नहीं, उसका कोई हल नहीं। वजीर अक्लमंद तक कहने लगा, बादशाह सलामत, अगर आपको कोई परेशानी लाहक है तो हम गुलाम आपके किस दिन काम आएंगे? बादशाह कहने लगा, सुन ए मेरे वफादार वजीर, मेरी सारी उम्र इस मुल्क को संभालते और मुल्क गिरी करते हुए इसी दर्द सर में गुजर गई, अब आगे मौत ही मौत है, सो उसका पैगाम भी करीब है, क्योंकि अब बाल भी सफ़ेद होने लगे हैं। सारी रात सोए, सुबह को बिना जागेंगे, अब एक बेटा भी पैदा न हुआ जो मेरी खातिर जमा होती, यानी मेरे दुख सुख में शरीक होता, मेरा सहारा बनता। मुल्क ले ले या माल ले ले, मुझे कुछ काम नहीं, बल्कि कोई दम मैं ये इरादा रखता हूँ कि सब छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में निकल जाऊं और अपना मुंह किसी को ना दिखाऊं, इसी तरह ये चंद रोज की जिंदगी बसर करूं। अगर कोई जगह पसंद आई तो वहीं बैठकर अपने माबूद अल्लाह ताला की बंदगी बचा लाऊंगा, शायद आकबत संवर जाए। और दुनिया को तो खूब देख लिया लेकिन कुछ मजा ना आया। इतनी बात बोल कर और एक आह भर कर बादशाह खामोश हो गया। वजीर बड़ा अक्लमंद था और उनके बाप के ज़माने से वजीर था। जब ये छोटे शहजादे थे तब से इनसे मोहब्बत रखता था। इसके अलावा अक्लमंद और नेक अंदेश था, यानी नेक नियत था। कहने लगा, बादशाह सलामत, खुदा की जनाब से नाउमीद होना हरगिज मुनासिब नहीं। अल्लाह ताला जिसने 1000 आलिमों को एक हुक्म में पैदा किया, औलाद देना उसके लिए क्या बड़ी बात है। किबलाए आलम, इस ख्याल को अपने दिल से दूर कर दीजिए, नहीं तो तमाम आलम धर्म भरम हो जाएगा। ये सल्तनत आपके बाबा अजदाद और बुजुर्गों ने इतनी मेहनत और मुशक्कत से बनाई थी, एक ज़रा सी हाथ में निकल जाएगी और बेखबरी से मुल्क वीरान हो जाएगा। खुदा न खास्ता बदनामी होगी, आपके ख़ानदान के नाम पर बट्टा लगेगा। इस पर भी आपको रोज़े क़यामत बाज पुरस होगी कि तुझे बादशाह बनाया, अपने बंदों को तेरे हवाले किया और तू हमारी रहमत से मायूस हुआ और बंदों को बेआसरा छोड़ दिया, अपनी रियाया का ख्याल ना किया, अपनी रियाया को हैरान और परेशान छोड़ दिया। इस सवाल का आप क्या जवाब देंगे? बस इबादत भी उस रोज़ काम ना आएगी, क्योंकि आप अपनी रियाया के लिए जवाबदेह होंगे खुदा के सामने। अगर इंसाफ फरमाइए और इस फिदवी की अर्ज कबूल करें तो बेहतर यूं होगा जहां पना कि हर घड़ी ध्यान अपना खुदा की तरफ लगा कर रखें और दुआ मांगें। उसकी दरगाह से कभी कोई महरूम नहीं रहा, लेकिन दिन को अपने मुल्क का बंदोबस्त और इंतज़ामी अमूर चलाएं, इंसाफ करें, अदालत लगाएं, गरीब गुरबा की मदद फरमाएं, तो फिर खुदा के सामने अपना दामन फैलाकर उससे जो मांगें। इसलिए कि जब आपकी रियाया अमन मान और खुश रहेगी तो उसके बाद अल्लाह ताला भी आपको खुश होकर हर चीज़ नवाजेगा। रात को इबादत कीजिए और दरूद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को न्याज करके दरवेश गोशा नशीन मदद लीजिए और यतीमों, असीर, अयालदार, मोहताजों, रांडों, बेवाओं को मदद कीजिए। ऐसे अच्छे कामों से अल्लाह ताला खुश होगा और नेक नीति की बरकत से अल्लाह ताला चाहे तो आपको अपने ख़जाने से सब कुछ नवाज दे। आपके दिल के तमाम मकासद और ख्वाहिशें पूरी होंगी और जिसकी वजह से आपके मिजाज ग्रामी परेशान और फिक्रमंद हैं वो आरजू पूरी होगी। अपने परवरदिगार की इनायत पर नज़र रखें, वो जो चाहे कर सकता है, उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अक्लमंद वजीर की ये बातें सुनकर बादशाह आज़ाद बख्त के दिल को ढारस मिली और कहने लगा, वजीर तुम जो कुछ कहते हो वो बहुत अच्छी बात है, मैं ये भी करके देख लेता हूँ, आके जो अल्लाह ताला की मर्जी होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। जब बादशाह के दिल को तसल्ली हो गई तब वजीर से पूछा कि दरबारी, अमीर, कबीर सब कैसे हैं और क्या कर रहे हैं आजकल? उसने अर्ज की कि सब अरकान दौलत आपकी सलामती और जानो माल के लिए दुआ करते हैं। आपकी इस परेशानी की वजह से सब हैरान और परेशान हैं। अपना चेहरा मुबारक उनको दिखाइए तो उनको तसल्ली हो। चुनाचे उसी वक्त दीवाने आम में हाजिर हैं। ये सुनकर बादशाह ने हुक्म दिया कि इंशाअल्लाह ताला कल दरबार मुनक्किद करूँगा, सबको कह दो कि हाजिर हो जाएं। वजीर ये वादा सुनकर बहुत खुश हुआ और दोनों हाथ उठाकर बादशाह को दुआ दी कि जब तक ये ज़मीन व आसमान मौजूद हैं आपका ताजो तख्त हमेशा सलामत रहे।
बादशाह सलामत से रुखसत होकर खुशी खुशी बाहर निकला और ये खुशखबरी अपने तमाम अमीरों और वजीरों को सुनाई। सब हंसी खुशी अपने घर को चले गए। सारे शहर में ये खबर हो गई। रियाया फिर पुरुमीद हो गई कि कल बादशाह दरबार आम मुनक्किद करेगा। सब खाना-ए-ज़ाद, आला अदना और काने दौलत छोटे बड़े अपने अपने पाए और मर्तबे के मुताबिक दरबार में आकर खड़े हो गए और इस बात का इंतजार में थे कि कब बादशाह सलामत अपना चेहरा दिखाएंगे। दिन चढ़ा, पर्दा उठा और बादशाह ने बरामद होकर तख्त पर जलवा अफरोज हुए। नौबत खाने में शादियाने बजाए जाने लगे। सब ने नजरें मुबारकबाद की गर्दानी और मुजरा गाह में तस्लीमात और कोरनिशात बजाए गए। सब अपनी कदरों मंजिलत के मुताबिक सबको सरफराजी हासिल हुई। सबके दिल को खुशी और चैन हुआ। जब दोपहर हुई तो दरबार बर्खास्त करके बादशाह सलामत महल के अंदर चले गए। खासा नोश जान फरमाकर ख्वाबगाह में आराम किया। उस दिन से बादशाह ने यह मुकर्रर किया कि हमेशा सुबह को दरबार करेंगे, तीसरे पहर किताब का मुतालिया करेंगे या दरूद वजीफ़ा पढ़ेंगे और खुदा की दरगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करके अपने दिल से दुआ मांगेंगे। एक रोज़ बादशाह ने एक किताब में पढ़ा कि अगर किसी शख्स को कोई परेशानी, गम या फिक्र हो कि उसका इलाज तदबीर से ना हो सके तो चाहे कि तकदीर के हवाले कर दे और खुद गोरिस्तान की तरफ रुजू करे। दरूद तुफैल पैगंबर की रूह के उनको बख्शे और अपने तईन नेस्तो नाबूद समझकर दिल को इस गफलत दुनियावी से होशियार रखे और इबरत से रो दे और खुदा की कुदरत को देखे कि मुझसे आगे कैसे कैसे साहिब मुल्क और ख़जाना इस ज़मीन पर पैदा हुए, लेकिन आसमान ने सबको अपनी गर्दिश में लाकर खाक में मिला दिया। अब जो देखे तो एक सिवाय मिट्टी के ढेर के उनका कोई भी निशान बाकी नहीं रहा और सब दौलत, दुनिया, घर बार, आल औलाद, आशना, दोस्त, नौकर चाकर, हाथी घोड़े छोड़कर अकेले पड़े हैं। ये सब उनका कुछ काम ना आया, बल्कि उन कोई नाम भी ना जानता था कि ये कौन थे और कब्र के अंदर के उनका हाल मालूम नहीं कि कीड़े मकोड़े, चींटे, सांप उनको खा गए या उन पर क्या गुजरी और खुदा से कैसे उनका सामना हुआ। ये बातें अपने दिल में सोचकर सारी दुनिया को परखने का खेल जाने, तब उसके दिल का गुंचा हमेशा शगुफ्ता रहेगा, कभी उसके दिल में मायूसी ना होगी। जब ये नसीहत उसने किताब में पढ़ी तो उसको एकदम अपने अक्लमंद वजीर का कहना याद आया और इन दोनों को उसके मुताबिक पाया। ये शौक हुआ कि इस बात पर अमल भी करूं, लेकिन खुद अपने इस हुलिये में बादशाहों की तरह जाना और फिरना मुनासिब नहीं। बेहतर यह है कि लिबास तब्दील करके भेस बदल कर रात को अकेले मकबरों या किसी मर्द खुदा गोशा नशीन की खिदमत में हाजिर हो जाया करूं, रात गुजारूं, शायद उन नेक आदमियों के वसीले से दुनिया की मुराद और आकबत की निजात मुयस्सर हो। ये बात दिल में मुकर्रर करके एक रोज़ बादशाह छोटे मोटे कपड़े पहनकर, रुपए अशरफियाँ उनमें छुपाकर चुपके से अपने महल से बाहर निकला और मैदान की राह ली। जाते जाते एक कब्रिस्तान में जा पहुंचा। निहायत सदके दिल से दरूद शरीफ पढ़ रहे थे और उसी वक्त हवा तुंद तेज चल रही थी, बल्कि आंधी कहना चाहिए। एक बार बादशाह को दूर से एक शोला सा नजर आया कि सुबह के सितारे की मानिंद रोशन है। दिल में ख्याल किया कि इस आंधी और अंधेरे में ये रोशनी हिकमत से खाली नहीं हो सकती, या ये कोई तिलिस्म है कि अगर फटकड़ी और गंधक को चिराग में बत्ती के आसपास छिड़क दिया जाए तो कैसी ही तेज हवा चले चिराग गुल ना होगा। जो होगा सो देखा जाएगा, चलकर पास देखते हैं, शायद इस शम्मा की रोशनी से मेरे घर में भी उजाला हो जाए और दिल की मुराद मिल जाए। ये नियत करके उस तरफ को चल पड़ा। जब नजदीक पहुंचा देखा तो 4 फकीर बेनवा कफनियां गले में डाले और सर जानू पर धरे आलम बेहोशी में खामोश बैठे हैं और उनका वो आलम है जैसे कोई मुसाफिर अपने मुल्क और कौम से बिछड़कर बेकसी और मुफलिसी के रंजो गम में गिरफ्तार होकर हैरान रह जाता है। इसी तरह से बेचारे नक्शे दीवार हो रहे थे और एक चिराग पत्थर पर धरा टिमटिमा रहा था। हरगिज हवा उसको नहीं लग रही थी, गोया फानूस उसका आसमान बना है कि जो बेखतर जलता है। आजाद बख्त को उन्हें देखते ही यकीन आ गया कि तुम्हारी आरजू इन मर्दाने खुदा के कदमों बरकत से पूरी होगी और तेरी उम्मीद का सूखा दरख्त इनकी तवज्जो से हरा भरा हो जाएगा। इनकी खिदमत में चढ़ कर अपना अहवाल बयान कर दे और इनके दरमियान मजलिस का शरीक हो जा। शायद तुझ पर रहम खाकर तेरे हक में दुआ करें जो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो। ये इरादा करके चाहा कि आगे कदम बढ़ाए। वहीं अकल ने समझाया कि ए बेवकूफ़, जल्दी ना कर, ज़रा देख ले, तुझे क्या मालूम कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं और किधर जाना चाहते हैं। क्या जाने ये देव हैं या गोले बियाबानी हैं कि आदमी की सूरत बनकर बाहम मिलकर बैठे हुए हैं। हो सकता है ये कोई और मखलूक हो। बार सूरत जल्दी करना और उनके दरमियान जाकर महफिल में बैठ जाना अभी ठीक नहीं। एक गोशे में बैठकर हकीकत इन दरवेशों की जान, पहले समझ तो सही कि ये हैं कौन। आखिर बादशाह ने यही किया कि एक कोने में उस मकान के चिपक कर बैठ गया कि किसी को उसके आने की आहट या खबर न हुई। अपना ध्यान उनकी तरफ लगाया कि देखिए कि आपस में क्या बातचीत करते हैं।
इत्तफाकन एक फकीर को छींक आ गई। शुक्र खुदा का किया, वो तीनों कलंदर उसकी आवाज से चौंक पड़े। चिराग को उकसाया, चिराग रोशन था। सब अपने अपने बिस्तरों पर हुक्के भर भर कर पीने लगे। उन चारों फकीरों में से एक बोला, ए दोस्तों, हम चारों आसमान की गर्दिश की तरह दिन रात के इनकलाब से दुनिया भर की खाक छानते हुए एक मुद्दत बार आकर मिले हैं। अल्लाह ताला की मदद और तकदीर की मेहरबानी से हमारी इस मकाम पर मुलाकात हुई है। हमें किसी का कोई हाल मालूम नहीं कि किसी के साथ क्या पेश आया। ये रात बड़ी पहाड़ सी लगती है, अभी से पढ़कर सो जाना ठीक नहीं। इससे बेहतर है कि हम अपनी अपनी सरगुज़श्त, अपनी कहानी, हम पर जो बीती वो सुना दें, मगर शर्त यह है कि उसमें किसी किस्म का झूठ ना हो, वो बयान करें। तो सारी रात हमारी बातों में कट जाएगी। जब थोड़ी रात बाकी रहेगी तो फिर हम सो जाएंगे। सबों ने कहा, तुम जो कुछ कह रहे हो ठीक है, हमने कबूल किया। सबसे पहले एक फकीर ने अपना हाल कहना शुरू किया। पहला दरवेश दुजानू होकर बैठ गया और अपनी कहानी का आगाज कुछ इस तरह से किया। ए दोस्तों, मेरी पैदाइश और वतन बुजुर्गों का मुल्क यमन है। वालिद इस आजिज का एक तिजारत करने वाला आदमी था, बड़ा सौदागर था। उस वक्त में कोई भी महाजन या व्यापारी उनके बराबर पाए का नहीं था। अक्सर शहरों में कोठियां और गुमाश्ते खरीदो फरोख्त के वास्ते मुकर्रर थे। लाखों रुपए नकद और इजनास मुल्क मुल्क के घरों में मौजूद थी। उनके यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए। एक तो यही फकीर है जो कफन सीली पहने हुए आपके सामने मौजूद है। दूसरी एक बहन जिसको किबलागाह ने अपने जीते जी और शहर के सौदागर बच्चे से शादी कर दी थी। वो भी मेरी बहन अपने ससुराल में रहती थी। गर्ज जिसके घर में इतनी दौलत और एक लड़का हो, उसका लाड प्यार का क्या ठिकाना होगा। मुझ फकीर ने बड़े चाव से माँ बाप के साय में परवरिश पाई और पढ़ना लिखना, सिपाही गरी के फन सीखे। सौदागरी का बही खाता, रोजा नामचे, सब कुछ सीखने लगा। 14 बरस तक निहायत खुशी और बेफिक्री में गुजर गए। कुछ दुनिया का अंदेशा और फिक्र दिल में न थी। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक ही साल में मेरे वालिदैन रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। अजीब तरह का गम था जो बयान नहीं कर सकता। एक बार फिर यतीम और मस्कीन हो गया। कोई सिर पर बड़ा बूढ़ा न रहा। इस मुसीबत नाहकानी से दिन रात रोने लगता। खाना पीना सब छूट गया। हर वक्त गम और परेशानी में मुब्तला रहता। 40 दिन जूं तू करके गुजर गए। चहलम में अपने बेगाने छोटे बड़े सब जमा हुए। जब इन तमाम कामों से फरागत हुई, सब ने फकीर कर बाप की पगड़ी मेरे सर पर बंधवा दी और समझाया कि दुनिया में सब के माँ बाप मरते आए हैं और अपने तई भी एक रोज़ मर जाना है। जो दुनिया में आया है उसे एक रोज़ जाना है। बस बेटा सब्र करो, अपने घर को देखो, अब बाप की जगह तुम हो। अपने कारोबार लेन देन से होशियार रहो। तसल्ली देकर रुखसत कर दिया। गमाश्ते, कारोबारी, नौकर चाकर जितने थे सब हाजिर हुए। नजरें दी और कहने लगे, अपनी कोठी, नकद रकम, जिन्स और अपनी नजर मुबारक से सब कुछ को देख लें। एक बार जो मेरी नज़र अपनी इस बेइंतहा दौलत पर पड़ी तो मेरी एकदम आंखें खुल गईं। दीवान खाने की तैयारी को हुक्म दिया। फिराशों ने फर्श फरोश बिछाकर छत, पर्दे, चुलोने तकल्लुफ की लगा दी और अच्छे अच्छे खिदमतगार, दीदार और नौकर रखे। सरकार से ज़र्क बर की पोशाकें बनवा दी। मैं मसनद पर तकिया लगाकर बैठ गया। वैसे ही आदमी, गुंडे, भांकड़े, मुफ्त खोरे और खाने पीने वाले झूठे खुशामदी आकर वाकफियत जताने लगे और मेरे दोस्त बन गए। उनसे आठों पहर की सोहबत बढ़ने लगी। इधर उधर की बातें करते, तबाही मचाते और कहते, इस जवानी के आलम में शराब और गुले शबाब होना चाहिए। नाजनीन माशूकों को बुलवाकर उनके साथ शराब पीजिए और ऐश कीजिए। गर्ज ये कि आदमी का शैतान आदमी होता है। हर दम उनके कहने से मैं उनकी बातों में आ गया और बहक गया। शराब, नाच और जुए का आदी हो गया। फिर तो ये नौबत पहुंची कि सौदागरी भूलकर तमाशबीनी और देने लेने का सौदा हुआ। अपने नौकर और दोस्तों ने जब ये गफलत देखी, जो जिसके हाथ लगा उसने लूट लिया। गोया लूट मचा दी। कुछ खबर न थी कितना रुपया खर्च हो गया, कहाँ से आता और किधर जाता। माले मुफ्त, दिले बेरहम। इस खर्ची के आगे तो कारून का खजाना भी होता तो वफा न करता और ख़त्म हो जाता। कई बरस के अरसे में एक बार ये हालत हुई कि फ़कत टोपी और लंगोटी ही बाकी बच गई। दोस्त आशना जो मेरे साथ रोटी खाते थे और जीने मरने की कस्में खाते थे और अपना खून मुझ पर छिड़कते थे, एकदम से गायब हो गए। बल्कि राह बाट में अगर कहीं किसी से मुलाकात हो जाती तो आंखें चुराकर मुंह फेर लेते। और नौकर चाकर, खिदमतगार जो वफादारी का यकीन दिलाते थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता सब छोड़कर किनारे लग गए। कोई पूछने वाला न रहा जो कि ये पूछे कि तुम्हारा हाल कैसे हुआ। सिवाय गम और अफसोस के कोई आदमी भी मेरा सहारा न रहा। अब दमड़ी की ठुड्डियाँ मयसर नहीं जो चबा कर पानी पीऊँ। 2-3 फाके कड़ा कर खींचे, भूख की ताब न ला सका।
लाचार बेहयाई का बुर्का मुंह पर ओढ़कर कसद किया कि बहन के पास चला जाऊं, लेकिन ये शर्म दिल में आती थी कि बाप की वफात के बाद कभी बहन का हाल ना पूछा, कभी उसके साथ अच्छा सलूक ना किया। ये मुंह लेकर किस तरह उसके पास जाऊंगा। इसी शर्मिंदगी से दिल ना चाहता था कि बहन के दर पर जाऊं, लेकिन इसके सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। उसके अलावा मेरा कोई और ठिकाना भी नजर नहीं आ रहा था। जूं तूं खाली हाथ गिरता पड़ता, हजार मेहनत से कई मंजिलें काट कर बहन के शहर में जाकर उसके मकान पर जा पहुंचा। वो मेरा ये हाल देखकर मेरी बलाएं नेले लगी और मेरे से गले लगकर बहुत रोई। तेल माश और काले टके मुझ पर से सदके करने लगी। कहने लगी, अगरचे मुलाकात से दिल बहुत खुश हुआ, लेकिन तेरी ये हालत भैया कैसे बनी। उसका जवाब मैं कुछ ना दे सका। आंखों में आंसू डुबडुबाकर चुप हो रहा। बहन ने जल्दी से कपड़े सिलवाकर हमाम में भेजा। नहा धोकर वो कपड़े पहने। एक बहुत अच्छा मकान आरामदेह मुझे रहने के लिए उसने दे दिया। सुबह को शरबत और लवाजमात से सोहन, पिस्ता, मगजी नाश्ते दिए और तीसरे पहर मेवे, खुश्क तर फल और रात दिन खूब मुर्ग पुलाव, नान, कबाब, तोहफा बतोहफा मज़ेदार खाने मंगवाकर मेरे रूबरू पेश करने लगी। उसने मेरी बहुत खातिरदारी की। मैंने काफ़ी अरसे के बाद इतना आराम और सुकून पाया था। खुदा की दरगाह में हजार हजार शुक्र बजा लाता। कई महीने इसी फरागत में गुजर गए और इसी ऐशो इशरत और तन्हाई में पड़ा रहा। एक दिन वो बहन जो बजाय वालदा के मेरी खातिरदारी करती थी, कहने लगी, ऐ भाई, तू मेरी आंखों की ठंडक है, तू मेरे माँ बाप की निशानी है। तेरे आने से मेरा कलेजा ठंडा हो गया है। जब तुझे देखती हूँ तो खुशी से बाग बाग हो जाती हूँ। तूने मुझे निहाल किया, लेकिन मर्दों को खुदा ने कमाने के लिए बनाया है, घर में बैठना उनको लाजिम नहीं होता। निकट्टू जो मर्द होता है वही घर बैठता है, उसको दुनिया के ताने सहने पड़ते हैं। खसूसन इस शहर के आदमी छोटे बड़े सब तुम्हारे इस यहाँ रहने पर बातें कहेंगे कि अपने बाप की दौलत को गंवाकर बहनोई के टुकड़ों पर पल रहा है। ये निहायत बेगैरती और मेरी जग हंसाई हो रही है और माँ बाप के नाम को बट्टा लग रहा है। नहीं तो मैं तो इस बात पर भी राजी हूँ कि अपने चमड़े की जूतियाँ सिलवाकर तुझे पहना दूँ और कलेजे में डालकर रखूँ। अब ये मशवरा है कि कहीं सफ़र करो, खुदा चाहे तो दिन फिरेंगे और इस मुफलसी के बदले तुम्हें खुशी और दौलत हासिल होगी। ये बात सुनकर मुझे भी गैरत आ गई। उसकी नसीहत पसंद आई। मैंने जवाब दिया, अच्छा अब तुम मेरी माँ की जगह हो, जो कहोगी मैं सो करूँगा। ये सुनकर, ये मर्जी पाकर घर में जाकर उसने 50 तोड़े अशरफी के असील लोंडियों के हाथों में लगवाकर मेरे आगे रखे और बोली, एक काफिला सौदागरों का दमिश्क को जा रहा है। तुम इन दौलत से जिन्स तिजारत की खरीदो, एक ताजर ईमानदार के हवाले करके दस्तावेज पक्की लिखवा लो और ख़ुद भी दमिश्क का सफ़र करो। वहाँ जब खैरियत से जा पहुँचो, अपना माल ममाए मुनाफा समझ बूझ कर ले लेना या आप बेच देना। मैं वो नकद अशरफियाँ लेकर बाजार चला गया। ससबाबे सौदागरी यानी सौदागरी का माल खरीद कर एक बड़े सौदागर के हवाले किया और उसके साथ दस्तावेज लिख ली। वो ताजर दरिया के रास्ते जहाज़ पर सवार होकर रवाना हो गया। मैंने खुशकी की रास्ते चलने की तैयारी की। जब रुखसत होने लगा तो बहन ने एक सिरी पाव भारी और एक घोड़ा साजो सामान से तैयार दिया और मिठाई पकवान एक खासा दान में बांध कर साथ लटका दिए और छागल पानी की साथ लगवा दी। इमाम जामन का रुपया मेरे बाजू पर बांध दिया। दही का टीका माथे पर लगाकर आंसू पी कर बोली, जाओ तुम्हें खुदा को सौंपा, पीठ दिखाते जा रहे हो, इसी तरह जल्द अपना मुंह दिखाना। मैंने दुआए खैर पढ़ी और कहा, तुम्हारा भी अल्लाह हाफिज है। मैंने कबूल किया। वहां से निकलकर घोड़े पर सवार हुआ और खुदा के तवक्कल पर भरोसा करके 2 मंजिल की एक मंजिल करता हुआ दमिश्क के पास जा पहुंचा। गर्ज जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा, बहुत रात हो चुकी थी। दरबान और निगाहबानों ने दरवाज़ा बंद कर रखा था। मैंने बहुत मिन्नत समाजत की कि मैं मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से थका हारा आकर पहुँचा हूँ। अगर दरवाज़ा खोल दो तो शहर में जाकर खाने पीने का बंदोबस्त करूँ और आराम कर पाऊँ। अंदर से वो कड़क कर बोले, इस वक्त दरवाज़ा खोलने का हुक्म नहीं, क्यों इतनी रात गए तुम आए हो। जब मैंने जवाब उनसे साफ सुना तो शहर पनाह की दीवार के नीचे घोड़े पर से उतरकर जमीन पोश बिछाकर वहां बैठ गया। जागने की खातिर इधर उधर टहलने लगा। जिस वक्त आधी रात उधर और आधी रात इधर हुई, हर तरफ सन्नाटा और सुनसान हो गया। देखता क्या हूं कि एक संदूक किले की दीवार पर से नीचे चला आता है। ये देखकर मैं अचंभे में हो गया कि ये क्या तिलिस्म है। शायद खुदा ने मेरी हैरानी और परेशानी पर रहम खाकर गैब के खजाने से इनायत की। जब वो संदूक जमीन पर आकर ठहरा, डरते डरते मैं उसके पास गया। देखा तो काठ का संदूक है। मैंने लालच में आकर उसे जल्दी से खोला। एक खूबसूरत माशूक कामनी सी औरत, जिसके देखने से ही होश उड़ जाए, घायल लहू में तरबतर, आंखें बंद किए पड़ी कलबला रही है।
آہستہ آہستہ ہونٹ ہل رہے ہیں اور یہ آواز منہ سے نکلتی ہے، اے کمبخت، اس بھلائی اور محبت کا یہی انجام تھا جو تو نے کیا۔ بھلا ایک اور زخم لگا۔ میں نے اپنا انصاف خدا کو سونپا، یہ کہہ کر اسی بے ہوشی کے عالم میں دوپٹے سے آنچل منہ پر لے لیا، میری طرف دیکھا تک نان اور دھیان نہ کیا۔ میں اس کو دیکھ کر اور یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور سن ہو کر رہ گیا۔ جی میں آیا کہ کسی بے حیا ظالم نے کیوں اس نازنین جیسی خوبصورت عورت کو زخمی کیا، کیا اس کے دل میں آیا تھا اور ہاتھ اس پر کیوں کر چلایا؟ اس کے دل میں تو ابھی تک محبت باقی ہے جو اس جان کنی کی حالت میں بھی اس کو یاد کر رہی ہے۔ میں اپنے آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آواز اس کے کان میں چلی گئی۔ ایک مرتبہ اس نے کپڑا سرکا کر مجھ کو دیکھا۔ جس وقت اس کی نگاہیں میری نگاہوں سے لڑیں، مجھے غش آنے لگے اور ساتھ ہی جی سنسنانے لگا۔ جرأت کر کے پوچھا، سچ کہو تم کون ہو اور یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر بیان کرو تو میرے دل کو تسلی ہو۔ یہ سن کر اگرچہ بولنے کی طاقت نہیں تھی، آہستہ سے کہا، شکر ہے کہ میری حالت زخموں کے مارے یہ کچھ ہو رہی ہے۔ کیا خاک بولوں؟ کوئی دم کی مہمان ہوں۔ جب میری جان نکل جائے تو خدا کے واسطے جواں مردی کر کے مجھ بدبخت کو اسی صندوق میں کسی جگہ گاڑ دینا، تو میں بھلے برے کی زبان سے نجات پاؤں اور تو داخل ثواب ہو۔ اتنا بول کر وہ چپ ہو گئی۔ رات کو مجھ سے کچھ تدبیر نہ ہو سکی، وہ صندوق اپنے پاس اٹھا لایا اور گھڑیاں گننے لگا کہ کب اتنی رات تمام ہو تو فجر کو شہر میں جا کر جو کچھ علاج اس کا ہو سکے کرا دوں، جتنی مجھ میں ہمت ہے۔ وہ تھوڑی سی رات پہاڑ جیسی لمبی ہو گئی کہ دل گھبرا گیا۔ خدا خدا کر کے جب صبح نزدیک ہوئی، مرغ بولا، آدمیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے فجر کی نماز پڑھ کر صندوق کو اٹھا کر گھوڑے پر کسا۔ جو ہی شہر کا دروازہ کھلا، میں شہر میں داخل ہوا۔ ہر ایک آدمی اور دکاندار سے حویلی کرائے کی تلاش کرنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک خوش کتھا مکان جو فارغ تھا بھاڑے پر لے کر جا اترا۔ پہلے اس عورت کو نکال کر صندوق سے روئی کے پہلوں پر ملائم بچھونا بچھا کر ایک گوشے میں لٹا دیا اور ایک اعتباری آدمی کو وہاں چھوڑ کر میں جراح کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ہر ایک سے پوچھتا پھرتا تھا کہ اس شہر میں جراح کاریگر کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ ایک حجام جراحی کے کام اور حکیمی کے فن میں پکا ہے اور اس کام میں نپٹ چکا ہے۔ اگر مردے کو بھی اس کے پاس لے جاؤ، خدا کے حکم سے ایسی تدبیر کرے گا کہ ایک بار پھر وہ جی اٹھے گا۔ وہ اسی محلے میں رہتا ہے اور عیسیٰ اس کا نام ہے۔ میں یہ سن کر بے اختیار چل پڑا۔ تلاش کرتے کرتے پتے پر اس کے دروازے پر جا پہنچا۔ ایک مرد سفید ریش کو دہلیز پر بیٹھے دیکھا اور کئی آدمی مرہم کی تیاری کے لیے کچھ پیس رہے تھے۔ فقیر نے مارے خوشامد کے ادب سے سلام کیا اور کہا، میں تمہارا نام اور خوبیاں سن کر آیا ہوں۔ ماجرا یہ ہے کہ میں اپنے ملک سے تجارت کے لیے چلا، گھر والی کو بسبب محبت ساتھ لے لیا۔ جب نزدیک اس شہر کے پہنچا، تھوڑی ہی دور تھا کہ شام پڑ گئی۔ ان دیکھے ملک میں رات کو چلنا مناسب نہیں جانا۔ میدان میں ایک درخت کے نیچے ڈیرا لاڑ لیا۔ پچھلے پہر ڈاکو آئے، جو کچھ مال و اسباب ملا لوٹ لیا۔ گہنوں کے لالچ میں اس بی بی کو بھی گھائل کر دیا۔ مجھ سے کچھ نہ ہو سکا۔ رات جو باقی تھی جوں تو کر کے گزاری۔ فجر ہوتے ہی میں شہر میں آ کر ایک مکان کرائے پر لیا اور اس کو وہیں رکھ کر میں تمہارے پاس دوڑ آیا ہوں۔ خدا نے تمہیں یہ کمال دیا ہے، اس مسافر پر مہربانی کرو اور میرے غریب خانے تشریف لے چلو۔ اس کو دیکھا اگر اس کی زندگی ہوئی تو تمہیں بڑا ثواب ہوگا اور میں ساری عمر تمہاری غلامی کروں گا۔ عیسیٰ جرا بہت رحم دل اور خدا پرست تھا۔ میری غریب کی باتوں پر ترس کھا کر میرے ساتھ حویلی تک آیا۔ زخموں کو دیکھتے ہی میری تسلی کی، بولا، خدا کے کرم سے اس بی بی کے زخم 40 دن میں بھر جائیں گے، غسل شفا کروا دوں گا۔ غرض اسی مرد خدا نے سب زخموں کو نیم کے پانی سے دھو دھا کر صاف کیا، جو ٹانکوں کے لائق تھے انہیں سیا۔ باقی گھاؤں پر اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکال کر کتنوں میں پٹی رکھی اور کتنوں پر پھائے چڑھا کر پٹی سے باندھ دیا اور نہایت محبت اور شفقت سے کہا، میں دونوں وقت آیا کروں گا تو خبردار رہنا، ایسی حرکت نہ کرنا کہ ٹانکے ٹوٹ جائیں۔ مرغ کا شوربہ بجائے غذا اس کے حق میں بہتر ہوگا اور ارکے بید مشک گلاب کے ساتھ دینا، جو قوت رہے، یعنی کہ اس کے اندر طاقت آ جائے۔ یہ کہہ کر رخصت چاہی۔ میں نے بہت منت کی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، تمہاری تشفی دینے سے میری بھی زندگی ہوئی، نہیں تو سوائے مرنے کے کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے اور اس بات کی جزا دے۔ میں نے اسے عطر پان دے کر رخصت کیا۔ میں دن رات اس خوبصورت عورت کی خدمت میں حاضر رہتا، اپنے اوپر آرام کو حرام کر لیا۔ خدا کی مدد سے روز بروز اس کے زخم اچھے ہونے کی دعا مانگتا رہا۔ اتفاقاً وہ سوداگر بھی آ پہنچا جس کے پاس میرا مال تھا اور میرا مال امانت میرے حوالے کیا۔ میں نے اسے اونے پونے بیچ ڈالا اور دار و درمن میں خرچ کرنے لگا۔ وہ مرد جراح ہمیشہ آتا، تھوڑے عرصے میں سب زخم بھر کر انگور لائے، یعنی زخم اچھے ہونے لگے۔ کئی دن کے بعد
उसे शफा मिली, अजब तरह की खुशी हासिल हुई। लिबास और अशरफियाँ ईसा हजाम के आगे रखीं और उस परी को मुकल्लफ़ फ़र्श बिछाकर मसनद पर बिठाया। फ़कीर गरीबों को बहुत सी खैर खैरात की। उस दिन गोया मुझे 7 बादशाहों का ख़जाना मिल गया हो। और उस परी का शफा पाने से ऐसा रंग निखरा कि मुखड़ा सूरज की मानंद चमकने लगा और कुंदन की तरह दमकने लगा। वो इतनी हसीन थी कि नज़र भी उस पर ना ठहरती थी। मैं हर वक्त बसरो चशम उसके हुक्म के लिए हाजिर रहता, जो फरमाती वही करता। वो अपने हुस्न के गरूर और सरदारी के दिमाग में जो मेरी तरफ देखती तो फरमाती, खबरदार, अगर तुझे हमसे मोहब्बत है या हमारी रजामंदी मंजूर है तो हरगिज़ हमारी बात में दम ना मारना, हम जो कहें वही करना, हमारे सामने इनकार की जुर्रत मत करना, अपनी किसी बात में दखल न करना। उसकी वजह से ये मालूम होता था कि मेरी खिदमत गुजारी और फरमाबरदारी का उसे अलबत्ता मंजूर है। फ़कीर भी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक काम न करता और उसका हर्फ हुक्म बजा लाता। एक मुद्दत इसी राजो न्याज में गुजर गई। जो उसने फरमाइश की मैंने लाकर हाजिर की। मेरे पास जो कुछ जिन्स और नकद असलो मुनाफा था सब सर्फ हो गया। अब नौबत यह आ गई कि मेरे पास सारा माल मता ख़त्म हो चुका था। उस गैर मुल्क में कौन मुझ पर एतबार करता जो मुझे कर्ज दे से। आखिर तकलीफ रोज़मर्रा के खर्च की होने लगी, जिससे मेरा दिल बहुत घबराया। मैं फ़िक्र से दुबला पतला होने लगा, चेहरे का रंग भी पीला पड़ने लगा। लेकिन अपनी परेशानी का इजहार किससे करूं? जो दिल पर गुजरी सो गुजरी, कहर दरवेश भर जान दरवेश। एक दिन उस परी चेहरा औरत ने अपनी अकल से दरियाफ्त करके कहा, ऐ शख्स, तेरी खिदमत हम अच्छी तरह जानते हैं। हम इसका कुछ करके तो तुम्हें सिला नहीं दे सकते, मगर हमारे पास जो कुछ हो सका वास्ते खर्च के कुछ दरकार हो तो अपने दिल में गम न करना, अंदेशा न करना, मैं तुम्हें ज़रूर हाजिर करूंगी। ये कहकर एक टुकड़ा कागज़ उसने कलम दबात मुझसे मांगा। मैंने उसे दिया। मुझे तब मालूम हुआ कि वो किसी मुल्क की बादशाहजादी है जो इस दिलो दिमाग से गुफ्तगू करती है। फिल फौर कलमदान उसके आगे रखा। उस नाजनीन ने एक टुकड़े पर कुछ लिखा और दस्तखत करके मेरे हवाले की और कहा, किले के पास जाओ, वहाँ उस कूचे में एक हवेली बड़ी सी है। उस मकान के मालिक का नाम सैयदी बहार है। तो जाकर इस खत को उस तक पहुँचा दे। मैं वो खत लेकर उसी पते पर पहुँचा, उसी मंजिल मकसूद तक जा पहुँचा जिसका मंजिल का निशान उसने मुझे बताया था। दरबान को मैंने खत के बारे में बताया तो दरबार ने अंदर इतला की। एक हबशी जवान बाहर निकल आया। अगरचे रंग सांवला था पर नौजवान खूबसूरत था। मेरे हाथ से खत लिया, बोला कुछ नहीं, उन्हीं कदमों फिर अंदर चला गया। थोड़ी देर में 11 कश्तियां सर बमोहर जरे बफ्त की तोदाए पोश पड़े हुए गुलामों के सर पर धरे बाहर आया। कहा, इस जवान के साथ जाकर ये सब थैलियां इसके घर पहुंचा दो। मैं भी सलाम करके रुखसत होकर अपने मकान आ गया। आदमियों को दरवाजे के बाहर से रुखसत कर दिया। सब कुछ लाकर उस नाज़नीन के सामने रख दिया। नाज़नीन कहने लगी, इसको ले जाओ और ज़रूरियात पर खर्च करो। मुझे बड़ी हैरत थी, दिल में ये खलिश रही कि या इलाही ये क्या माजरा है। बगैर पूछे गिछे इतना माल नाशना सूरत अजनबी ने एक फ़कत कागज़ का पुर्जा देकर मेरे हवाले कर दिया। अगर इस परी चेहरा से ये राज ये भेद पूछूं तो इसने तो पहले ही मना कर दिया था, मारे डर के मुझे हिम्मत ना हो सकी कि उससे कुछ पूछ सकूं। 8 दिन के बाद वो माशूका मुझसे मुखातिब हुई कि हक ताला ने आदमी को इंसानियत का जामा इनायत किया है कि ना फटे और ना मैला हो। अगरचे पुराने कपड़े से उसकी आदमियत में कोई फ़र्क नहीं आता, पर ज़ाहिर में मखलूक खुदा की नज़रों में एतबार नहीं पाता। 2 तोड़े अशरफियों के साथ लेकर चौक के चौराहे पर यूसुफ सौदागर की दुकान में जाओ और कुछ रकम जवाहर के बेश कीमत और 2 लिबास जरक बरक ले आओ। मैं फौरन उसकी दुकान पर पहुंचा थे। देखा तो एक नौजवान शकील जाफरानी जोड़ा पहने गद्दी पर बैठा है और उसका ये आलम है कि एक आलम देखने के लिए दुकान से बाहर खड़ा है। फ़कीर कमाल शौक से नज़दीक जाकर सलाम अलैकुम करके बैठा और जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मुझसे मांगी। मेरी बात और गुफ्तगू का अंदाज उस शहर के लोगों की तरह नहीं था। उस जवान ने गर्मजोशी से कहा, जो साहब को चाहिए मौजूद है, लेकिन ये फरमाइए कि आप किस मुल्क से आए हैं और इस अजनबी शहर में आपके रहने का क्या सबब है। अगर इस हकीकत से मुझे आगाह कीजिए तो मेहरबानी करूँगा। मेरे तई अपना अहवाल जाहिर करना मंजूर ना था। मैं अपने बारे में बताना नहीं चाहता था। कुछ बात बताकर और जवाहर पोशाक लेकर और कीमत उसको देकर उससे इजाज़त चाही। उस जवान ने रूखे फीके लहजे में कहा, ऐ साहब, अगर तुमने ऐसी मुझसे बेमुरवती करनी थी तो पहले दोस्ती या इतनी गर्मजोशी दिखाने की क्या ज़रूरत थी। भले आदमियों में साहब सलामत का बड़ा पास होता है। ये बात उसने इस अंदाज से कही कि बेख्तियार दिल उसकी तरफ माइल हो गया। बेमुरवत होकर वहाँ से उठना इंसानियत के मुनासिब ना जाना। उसकी खातिर फिर बैठ गया और बोला, तुम्हारा फरमाना सर आंखों पर है, मैं हाजिर हूँ।
اتنا کہنے سے وہ بہت خوش ہوا، ہنس کر کہنے لگا، اگر آج کے دن آپ میرے غریب خانے پر رہیے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تمہارے ساتھ مجلس بنا کر بیٹھنے میں 2-4 گھڑی دل خوش ہو جائے گا اور دل بہل جائے گا، اور کچھ کھانے پینے کا اہتمام بھی ہم دونوں اکٹھے کریں گے۔ میں نے اس پری کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا جسے گھر پر چھوڑایا تھا۔ اس کی تنہائی کا سوچ کر میں نے اپنا عذر پیش کیا۔ اس جوان نے میری بات ہرگز نہ مانی، اور پھر آخر بات اس وعدے پر آ کر ختم ہوئی کہ میں دوبارہ آؤں گا، اور قسم کھلا کر اس نے مجھے رخصت کر دیا۔ میں دکان سے اٹھ کر جواہر اور لباس اس پری کی لے کر خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے قیمت جواہر کی اور حقیقت جوہری کی پوچھی۔ میں نے جو حوال تھا سارا اسے بیان کر دیا، اور جو اس نے میری دعوت اور گھر پر ٹھہرنے کا کہا تھا وہ بھی احوال اس نازنین کو بیان کر دیا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ آدمی کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ ہمیں خدا کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے وعدے اپنے قول کو نبھانا چاہیے۔ کھانے کی دعوت قبول کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے۔ تب میں نے کہا، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر جاؤں۔ تمہارے بغیر میں خود کو اداس اور لاچار محسوس کروں گا، اور جب تک تم سے دور رہوں گا میرا دل یہیں ٹکا رہے گا۔ یہ کہہ کر پھر اس جوہری کی دکان پر گیا۔ وہ موڑے پر بیٹھا میرے انتظار میں کھنچ رہا تھا۔ دیکھتے ہی بولا، آؤ مہربان، بڑی راہ دکھائی، میں نے بڑا انتظار کیا تمہارا۔ اس نے وہیں اٹھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چلا۔ جاتے جاتے مجھے ایک باغ میں لے گیا۔ وہ بڑا خوبصورت باغ تھا۔ حوض اور نہروں کے فوارے چھوٹے ہوئے تھے۔ میری طرح بطرح کے پھل تھے۔ ہر ایک درخت مارے بوجھ کے جھوم رہا تھا۔ رنگ برنگ کے جانور اور چرند پرند بیٹھے چہچہا رہے تھے، اور مکان عالیشان، فرش صاف ستھرا بچھا ہوا تھا۔ وہاں لبے نہر ایک بنگلے میں جا کر بیٹھا۔ وہ آدمی ایک دم اٹھ کر چلا گیا، پھر دوسری بہت خوبصورت پوشاک پہن کر واپس آیا۔ میں نے دیکھ کر کہا، سبحان اللہ، چشمے بدور۔ وہ سن کر مسکرایا اور بولا، مناسب یہ ہے کہ صاحب بھی اپنا لباس تبدیل کر لیں۔ اس کے کہنے پر میں نے بھی دوسرے کپڑے پہن لیے۔ اس نوجوان نے بڑی ٹیپ ٹاپ سے میرے کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ اس نے میری خوشی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جتنا اچھا کھانا ہو سکتا تھا مجھے پیش کیا، اور مجھ سے بہت گرمجوشی سے مزے مزے کی باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں پیالہ سراہی کا ساقی لے کر حاضر ہوا اور کئی قسم کے آگے لا کر رکھ دیے۔ نمک دان چن دیے۔ دورے شراب کا شروع ہوا۔ جب 2 جام کی نوبت پہنچی، 4 لڑکے جن کے بال بڑھے ہوئے تھے مجلس میں آ گئے اور گانے بجانے لگے۔ یہ عالم ہوا اور ایسا سما بن گیا کہ اگر تان سین بھی اس گھڑی ہوتا تو اپنی تان بھول جاتا اور بیجو باونا سن کر باولا ہو جاتا۔ اس مزے میں ایک بار وہ نوجوان آنسو بھر لایا۔ 2-4 قطرے بے اختیار اس کے رخساروں پر نکل پڑے اور مجھ سے کہنے لگا، اب ہماری تمہاری دوستی جانی ہوئی، بس دل کا کیا بہت دوستوں سے چھپانا۔ تمہاری دوستی کو دیکھتے ہوئے ایک بھروسے سے تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر تم کہو تو اپنی معشوقہ کو بلوا کر اس مجلس میں تسلی اپنے دل کی کر لوں۔ اس کی جدائی کے بغیر میرا دل نہیں لگ رہا۔ یہ بات اس نے اس قدر شوق سے کہی کہ میرے دل میں بھی اس بات کا شوق پیدا ہوا کہ میں اس کی معشوقہ کو دیکھوں۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری خوشی درکار ہے، اس سے کیا اچھی بات ہے، دیر نہ کرو۔ سچ ہے، معشوق کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس جوان نے میرے کہنے پر چلمن کی طرف اشارہ کیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک کالی کلوٹی بھوتنی جیسی عورت، جس کے دیکھنے سے ہی انسان مر جائے، جوان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ فقیر اس کو دیکھ کر ہی ڈر گیا۔ دل میں کہا، یہ بھی بھلا محبوبہ ہے؟ ایسے جوان پری ذات کی جس کی اتنی تعریف اور اشتیاق ظاہر کیا۔ میں لاہول والا پڑھ کر چپ ہو گیا۔ اسی عالم میں 3 دن وہ رات مجلس شراب اور رانگ رنگ جمی رہی۔ چوتھی رات کو نشے اور نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ میں خواب غفلت میں بے اختیار سو گیا۔ جب صبح ہو گئی تو اس نوجوان نے مجھے جگایا۔ کئی پیالے شربت کے منگا کر اس نے اپنی معشوقہ کے ذریعے مجھے پلائے تاکہ میں جاگ جاؤں، اور کہنے لگا، اب زیادہ مہمان کو تکلیف دینا مناسب نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ پکڑ کر اٹھے۔ میں نے رخصت مانگی، خوشی بخوشی اجازت دے دی گئی۔ تب میں نے جلد اپنے پرانے کپڑے پہن لیے اور اپنے گھر کی راہ لی اور اس نازنین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مگر ایسا اتفاق پہلے کبھی نہ ہوا تھا کہ اسے تنہا چھوڑ کر میں کہیں رات گزاری ہو۔ اس 3 دن کی غیر حاضری کی وجہ سے میں کافی شرمندہ تھا، اور میں نے اس کے سامنے وجہ بیان کی اور سارا اس کھانے اور دعوت کا قصہ اس کے آگے بیان کیا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں گھر آ جاؤں۔ وہ ایک دانا زمانے کی عقل مند عورت تھی۔ مسکرا کر بولی، کیا بات ہے، اگر ایک دوست کی خاطر رہنا بھی پڑ گیا، ہم نے تمہیں معاف کیا، تمہارا اس میں کیا قصور ہے؟ جب آدمی کسی کے گھر جاتا ہے تب اس کی مرضی سے ہی واپس آتا ہے، لیکن مفت کی مہمانیاں کھا پی کر بیٹھے رہو گے یا اس کا بدلہ بھی اتارو گے؟ اب یہ تم پر لازم ہے کہ جا کر اس سوداگر بچے کو اپنے ساتھ لے آؤ اور اس سے بڑھ کر اس کی دعوت کرو، اور ہاں، فکر مت کرنا،
खुदा के करम से घर में सब कुछ मौजूद है, सब लवाजमात तैयार हो जाएंगे और इससे मजलिस की रौनक बढ़ जाएगी और खाना भी अच्छा पेश किया जाएगा। मैं उसके हुक्म के मुताबिक उसी जौहरी के पास गया और उससे कहा कि तुम्हारा कहना तो मैंने अपनी सर आंखों पर बजा लाया और मान लिया, अब तुम भी मेहरबानी करो और मेरी दावत कबूल करो। उसने कहा, मैं दिलो जान से हाजिर हूँ। तब मैंने कहा कि अगर तुम मेरे घर तशरीफ़ ले चलो तो तुम्हारा एहसान होगा, गरीब नवाजी होगी। उस जवान ने बहुत उज़्र पेश किए और हीले बहाने करने लगा, पर मैंने उसका पीछा न छोड़ा जब तक वो राज़ी न हो गया और साथ ही उसको लेकर अपने मकान पर आ गया। लेकिन रास्ते में यही फिक्र करता था कि अगर आज अपने तई मुकद्दर होता तो ऐसी तवाज़ो करता कि ये भी खुश हो जाता। अब मैं इसीलिए जाता हूँ, देखें होता क्या है। बस इसी परेशानी में घर के नज़दीक पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि दरवाजे पर धूमधाम हो रही है। गलियारे गली में झाड़ू देकर छिड़काव कर रहे हैं, इतर छिड़के जा रहे हैं, असा बरदार खड़े हैं। मैं हैरान हुआ, लेकिन अपना घर जानकर कदम अंदर रखा। देखा तो तमाम हवेली में फर्श मुकल्लफ लाइट पर मकान के जा बजा बिछा है और मसनदें लगी हैं। पानदान, गुलाब पाश, इतरदान, पीकदान, चंगेरे, नरगिसदान करीने से धरे हैं। ताकों में रंग तरंगे, कनोले, नारंगियाँ और गुलाबियाँ रंग बरंग की चुनी हैं। एक तरफ रंग अमेज अबरक की चिरागां की बहार है, एक तरफ झाड़ और सरकनों के रोशन हैं और तमाम दालान और शाह नशीनों में तलाई शमादान पर काफूरी शमें चढ़ी हैं और फानूस जगमगा रहे हैं। सब आदमी अपने अपने ओहदों पर मुस्तैद हैं। बावर्ची खाने में देगें खड़क रही हैं। आबदार खाने की वैसी तैयारी है। चौकी पर डोंगे, कटोरे, बमा, थाली, सरपोश धरे बर्फ के अब होरे लग रहे हैं और शोरे की सराहियां उबल रही हैं। बादशाहों की तरह के सब असबाब मौजूद हैं और कंचनियां, भांड, भक्ते, कांत, कवाल अच्छी पोशाकें पहने सुर मिलाए बैठे हैं। फकीर ने उस जवान को ले जाकर एक मसनद पर बिठाया और दिल में हैरान था कि या हिलाई, इतने थोड़े से वक्त में ये सब तैयारी कैसे हो गई। हर तरफ देख रहा था लेकिन उस परी निशान का कहीं नामो निशान न पाया। इसी कोशिश में एक मरतबा बावर्ची खाने की तरफ जा निकला। बावर्ची खाने में क्या देखता हूँ कि वो नाज़नीन एक जगह कुर्ता पजामा पहने, सर पर सफ़ेद रुमाली ओढ़े हुए वहाँ खड़ी है और गहने भी पहन रखे हैं। वो खाना पकाने वालों की खबर गिरी में मसरूफ़ थी और हर एक को ताकीद कर रही थी कि खाना मज़ेदार होना चाहिए और हर तरह से अच्छा होना चाहिए। उसी मेहनत की वजह से उसका गुलाब सा बदन सारा पसीने पसीने हो रहा है। मैं उसके पास जा खड़ा हुआ और उसकी समझ बूझ को जानकर दुआएं देने लगा। ये खुशामद सुनकर वो तेवरी चढ़ाकर बोली, आदमी से ऐसे काम होते हैं कि फरिश्ते की मजाल नहीं। मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम इतने हैरान हो रहे हो? तुम्हारे इस तरह ज़्यादा बातें बनाने से मुझे खुशी नहीं होती। भला ये भी तुम्हारी आदमियत है कि मेहमान को अकेला छोड़कर इधर उधर फिर रहे हो। वो अपने दिल में क्या सोचता होगा। जल्दी जाओ, मजलिस में बैठकर मेहमान की खातिरदारी करो और उसकी माशूका को भी बुलवाकर उसके पास बिठाओ। मैं उसी नौजवान के पास गया और गर्मजोशी से उससे बातें करने लगा। इतने में दो खूबसूरत गुलाम सुराही और जाम हाथ में लिए रूबरू आकर बैठ गए और शराब पिलाने लगे। उसमें मैंने उस नौजवान से कहा, मैं सब तरह मुखलिस और खादम हूँ। बेहतर यह है कि वो साहिब जमाल जिसकी तरफ दिल माइल है, यानी आपकी माशूका, वो यहाँ पर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप कहें तो मैं एक आदमी उसे बुलाने के लिए भेज दूँ। ये सुनते ही वो खुश होकर बोला, बहुत अच्छी बात है, इस वक्त तो तुमने मेरे दिल की बात कर दी है। मैंने एक मुलाजिम को भेजा। जब आधी रात हो गई तो वो चुड़ैल नमा भूतनी औरत यानी उस नौजवान की माशूका आ गई। फ़कीर ने लाचार होकर उसे उस मेहमान के साथ बिठा दिया और निहायत तपाक से उसका इस्तकबाल किया। नौजवान उसको देखते ही इतना खुश हुआ जैसे उसे दुनिया की नेमत मिल गई हो। वो भूतनी भी उस नौजवान परीजाद के गले से लिपट गई। सचमुच ये एक अजीब तमाशा था, जैसे 14वीं रात के चांद को गहन लग गया हो। जितने मजलिस में आदमी थे सब अपनी अपनी उंगलियां दांतों में दबाए हैरत से उस बला को देख रहे थे जो उस खूबसूरत नौजवान पर आशिक हो गई थी या नौजवान उस पर आशिक हो चुका था। सब की निगाहें उसी तरफ थीं। तमाशा मजलिस का भूलकर उसका तमाशा देखने लगे। एक शख्स बोला, यारो इश्क और अकल में ज़िद है। जब कुछ अकल में नहीं आता तो ये ज़िद बन जाती है। ये काफिर इश्क कर दिखावे, लैला को मजनू की आंखों से देखो। सबों ने कहा, बिल्कुल यही बात है। मैं उस नाज़नीन के हुक्म के मुताबिक मेहमान की खातिरदारी में मौजूद था। चुनाचे मुझे महफिल के आदाब के तहत उसके साथ हम प्याला हम नवाला बनना था। मैं उस नाज़नीन के खौफ से खाने पीने की तरफ बिल्कुल रुजू न कर रहा था और मेहमानदारी पूरी तरह निभा रहा था। इसी कैफियत में 3 रोज़ गुजर गए। चौथी रात नौजवान निहायत जोश से मुझे बुलाकर कहने लगा, अब हम आपसे रुखसत होंगे।
تمہاری خاطر اپنا سب کاروبار چھوڑ چھاڑ کر 3 دن سے تمہاری خدمت میں حاضر ہیں۔ تم بھی تو ہمارے پاس ایک دم بیٹھ کر ہمارا دل خوش کرو۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر اس کا کہا نہیں مانا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، دوستی اور مہمان کی خاطرداری کرنی چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ کا حکم۔ اس کے ساتھ ہی نوجوان کو پیالہ پیش کیا گیا اور میں نے بھی وہ پیالہ پی لیا۔ پھر تو ایسا دور چلا کہ تھوڑی دیر میں سب آدمی مجلس کے بے خبر ہو گئے، کیونکہ وہ شراب تھی اور اتنی زیادہ پی کہ میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور سورج سوا نیزے پر بلند ہوا تب میری آنکھ کھلی تو دیکھا میں نے نہ وہ مجلس ہے، نہ وہ پری، نہ وہ نوجوان، فقط حویلی خالی پڑی ہے، مگر ایک کونے میں ایک کمبل لپٹا ہوا پڑا ہے۔ جو اس کو کھول کر دیکھا تو وہ نوجوان اور اس کی معشوقہ دونوں کے سر کٹے ہوئے پڑے ہیں۔ یہ حالت دیکھتے ہی میرے حواس گم ہو گئے، عقل کچھ کام نہیں کر رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا تھا اور کیا ہوا۔ حیرانی سے ہر طرف دیکھ رہا تھا، اتنے میں خواجہ سرا جسے کھانے کی دیکھ بھال میں دیکھا گیا تھا نظر پڑی۔ میں اس کو دیکھ کر کچھ تسلی ہوئی، اس سے پوچھا کہ کیا واردات ہوئی۔ اس نے جواب دیا، تجھے اس بات کی تحقیق کرنے سے کیا حاصل ہو جو تو پوچھتا ہے۔ میں نے بھی اپنے دل میں غور کیا، سچ تو کہتا ہے۔ پھر ایک ذرا سوچ کر بولا، خیر نہ کہو، بھلا یہ تو بتاؤ کہ وہ میری نازنین کس مکان میں ہے، کہاں چلی گئی یہاں سے؟ تب اس نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ کہہ دوں گا، لیکن تجھ سا بے وقوف آدمی نہیں دیکھا۔ 2 دن کی دوستی اور چلا بے تکلف ہونے، اور اتنا مدہوش ہو گیا کہ تجھے حواس ہی نہ رہے۔ میں اس کی حرکت اور اس کی نصیحت پر اندر سے نادم ہوا، سوائے اس بات کے زبان سے کچھ نہ نکلا کہ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اس آدمی نے مہربان ہو کر اس نازنین کے مکان کا نقشہ بتایا اور مجھے وہاں سے رخصت کیا۔ اب ان دونوں نوجوان اور اس کی معشوقہ کے کٹے ہوئے سر اور ان کی لاشوں کو دفنانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ جیسے تیسے کر کے ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگایا اور اس تہمت اس فساد سے الگ ہوا، اور اسی شوق میں اس پری سے ملنے کے لیے گھبرایا ہوا گرتا پڑتا اس کے مکان کو ڈھونڈتا شام کے وقت اس کے اسی کوچے میں اسی پتے پر جا پہنچا اور اس کے مکان کے نزدیک گوشے میں ساری رات گزار دی۔ کسی کی آمد و رفت کی آہٹ نہ ملی اور کوئی میرا پرسانے حال نہ ہوا۔ اسی بے کسی کی حالت میں صبح ہو گئی۔ جب سورج نکلا اس مکان کے بالا خانے کی ایک کھڑکی سے وہ نازنین میری طرف دیکھنے لگی۔ اسی وقت خوشی کا وہ عالم تھا کہ میں خدا ہی جانے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ نظر تو آئی۔ اتنے میں ایک ملازم نے میرے پاس آ کر کہا کہ تو اس مسجد میں جا کر بیٹھ جا، شاید تیری مراد اس جگہ پوری ہو جائے اور تجھ سے آ کر ملے۔ اس کی اس طرح کہنے سے میں اسی مسجد میں جا کر بیٹھ رہا، لیکن آنکھیں دروازے کی طرف لگی رہیں کہ دیکھیں کب وہ پردے سے ظاہر ہو۔ جیسے تمام دن روزہ دار شام ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، میں نے بھی 2 روز ویسے ہی بے قراری میں اسی مسجد میں بیٹھ کر کاٹ دیے کہ تیسرے دن وہی خواجہ سرا جس نے اس پری زاد کے مکان کا پتہ بتایا تھا مسجد میں آیا۔ نماز سے فراغت کے بعد میرے پاس آ کر اس نے بڑی محبت سے میرے پاس بیٹھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور تسلی دینے لگا اور اپنے ساتھ لے کر چلا۔ رفتہ رفتہ ایک باغیچے میں جا کر مجھے بٹھایا، کہنے لگا یہاں رہو جب تک تمہاری آرزو پوری ہوتی ہے، اور خود رخصت ہو کر شاید میری حقیقت اس کے حضور کہنے چلا گیا۔ میں اس باغ کے پھولوں کی بہار اور چاندنی کا عالم اور نہر میں فوارے ساون بھادوں کے اچھلنے کا تماشا دیکھ رہا تھا، لیکن جب پھولوں کو دیکھتا تب اس گل بدن کا خیال آتا، جب چاند پر نظر پڑتی تب اس ماں رو کا مکھڑا یاد کرتا۔ یہ سب بہار اس کے بغیر میری آنکھوں میں خار تھی۔ بالآخر میری مراد پوری ہوئی اور وہ پری چہرہ باغ میں داخل ہوئی اور ایک مسند پر اوڑھنی اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے قریب پہنچ کر اس کے غلاموں کی طرح ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے گرد ایسے گھومنے لگا جیسے پروانہ شمع کے گرد پھرتا ہے۔ اس میں وہ خواجہ سرا میری خاطر سفارش کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا، بندہ گناہگار ہے، جو کچھ سزا میرے لائق ہے وہ مجھے سنا دیجئے، لیکن اس طرح مجھ سے نفرت نہ کیجئے، مجھ سے منہ نہ پھیریے۔ وہ پری چہرہ ناخوش تھی، بد دماغی سے بولی، اب اس کے لیے یہی اس کے حق میں بہتر ہے کہ 100 توڑے اشرفی کے اسے دے دو اور یہ اپنے وطن چلا جائے۔ میں یہ بات سنتے ہی وہیں کھڑا ہو گیا جیسے سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہوں۔ کوئی میرے بدن کو کاٹے تو اس میں سے ایک لہو بھی نہ نکلے۔ تمام دنیا جیسے ویران لگنے لگی، آنکھوں کے گرد اندھیرا سا چھانے لگا اور ایک آہ نامرادی میرے منہ سے نکلی، آنسو بھی ٹپکنے لگے۔ سوائے خدا کے اس وقت کسی اور کی یاد نہ آ رہی تھی۔ مایوس ہو کر بولا، بھلا اپنے دل میں ذرا غور فرمائیے، اگر مجھ کم نصیب کو دنیا کا لالچ ہوتا تو اپنی جان و مال حضور میں نہ کھوتا۔ کیا ایک بار آپ کی خدمت گزاری کا موقع نہیں مل سکتا جو مجھ کام وقت پر آپ اتنی مہربانی فرمائیں؟ خیر اب میرے تئیں بھی زندگی سے کچھ کام نہیں۔ معشوق کی بے وفائی سے بیچارے عاشق کی جان بچتی ہی نہیں۔ یہ سن کر وہ تیکھی ہو کر تیوری چڑھا کر خفکی سے بولی، آپ ہمارے عاشق ہیں، مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا؟ ارے بے وقوف،
अपने हौसले से ज्यादा बातें मत बनाओ, छोटा मुंह और बड़ी बात। बस चुप रह, ये नकमी बातचीत मत कर। अगर किसी और ने यह हरकत की होती तो परवरदिगार की कसम उसकी बोटियां कटवा कर चील कौवों को खिला देती, पर क्या करूं, तेरी खिदमत याद आती है। अब इसी में तेरी भलाई है कि अपना रास्ता नाप। तेरी किस्मत का दाना पानी हमारी सरकार में से बस यहीं तक था। फिर मैंने रोते बसूरते कहा, अगर मेरी तकदीर में यही लिखा है कि अपने दिल का मकसद ना पाऊं और जंगलों और पहाड़ों में सर टकराता फिरूं, तो मैं लाचार हूं। इस बात से भी वो तप कर कहने लगी, मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं, इससे कह चला जा। फिर उसी खफकी के आलम में वो उठकर अपने दौलत खाने को चली गई। मैंने उसे बहुत बेहतरा पुकारा, बहुत सर पटका, मगर वो मेरी तरफ मुतवज्जो न आई। लाचार मैं भी उस मकान से उदास और नाउम्मीद होकर निकल पड़ा। गर्ज 40 दिन तक यही नौबत रही, जबकि शहर की आवारागर्दी से उकता कर जंगल में निकल जाता। जब वहां से घबराता फिर शहर की गलियों में दीवाना हो जाता, न दिन को खाता न रात को सोता। मेरी हालत ऐसे हो गई जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। जिंदगी इंसान की खाने पीने से है, आदमी अनाज का कीड़ा है। ताकत बदन में ना रही, अपाह चोकर उसी मस्जिद के दीवार के तले जा पड़ा। मेरी शक्लो सूरत ही बदल चुकी थी। चेहरे की ये शक्ल थी कि जिसने मुझे पहले देखा था वो पहचान भी ना सके कि ये वही आदमी है। एक दिन वही ख्वाजा सरा वहां नमाज पढ़ने आया। मुझे देखा तो हैरान रह गया। कहने लगा, तूने ये अपनी हालत कैसे बनाई? मैंने कहा, अब जो हुआ सो हुआ। वो कहने लगा, तू भी बेवकूफ़ है, तुझे इतना माल शहजादी ने दिया था, तू चला जाता। मैंने कहा, अगर मुझे माल की परवाह होती तो वो माल उस पर न लुटाता। ये सुनकर एक खिदमतगार मेरे पास छोड़कर मस्जिद में चला गया। नमाज और खुतबे से फरागत पाकर जब बाहर निकला तो मुझे साथ लेकर उसी बेपरवाह नाज़नीन के पास जा पहुंचा। मुझे उस परी चेहरा के साथ बहुत अरसा रहने का इत्तेफाक हुआ था, मगर फिर भी वो मुझे देखकर जानबूझकर बेगानी बनकर पूछने लगी, ये कौन है? उस आदमी ने कहा, ये वही कमबख्त बदनसीब है जो आपकी खिदमत में इतना अरसा पड़ा रहा था। इसकी इश्क की वजह से ऐसी हालत हो गई है। हर चंद के आंसुओं के पानी से बुझाता है अपनी आग को, उस इश्क की आग को, मगर वो फिर भड़कती है, कुछ फायदा नहीं होता। वो नाज़नीन कहने लगी, क्यों झूठ बकता है? मुझे तो इसकी बहुत दिन पहले खबर मिली थी कि अपने वतन चला गया है। अब ये कौन है और किसका जिक्र करता है? ख्वाजा सरा ने हाथ जोड़कर इल्तजा की, अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। वो नाज़नीन कहने लगी, तेरी जान बख्शी। ख्वाजा बोला, आपकी ज़ात कदरदान है, खुदा के वास्ते इसकी हालत पर रहम कीजिए। किसी का कसूर माफ़ कर देना सवाब का काम है। आगे हद अदब जो आपके मिजाज मुबारक में बेहतर हो वही ख्वाजा इतना कहने पर मुस्कुराकर बोली, भला कोई हो उसे दार शिफा में रखो, जब भला चंगा होगा तब इसके हवाल की परस्तिश की जाएगी। ख्वाजा ने कहा, अगर आप अपने दस्ते खास से गुलाब इस पर छिड़कें और ज़बान से कुछ कहें तो इसको अपने जीने का भरोसा मिले। नाउमीदी बुरी चीज़ है, दुनिया उम्मीद पर भी कायम है। इस पर उस परी महविश ने कुछ न कहा। यह सवाल और जवाब सुनकर मैं भी अपने जी से उकताया जा रहा था। बेधड़क बोल उठा कि अब इस दौर की जिंदगी को दिल नहीं चाहता। पाँव तो गोर में लटका चुका हूँ, एक रोज़ मरना है और इलाज में मेरा शहजादी आपके हाथ में है। आप करें या ना करें, दिली दुआ है कि आपका पत्थर दिल नरम हो जाए। उस शहजादी ने मेहरबान होकर फरमाया कि जल्दी हकीमों को हाजिर करो। थोड़ी ही देर बाद तबीब और हकीम जमा हो गए। उसकी नब्ज देखकर बहुत गौर की। आखिर में ये तशखीस ठहरी कि यह शख्स इश्क का मरीज़ है, सिवाय माशूक के इसका कोई इलाज नहीं। जिस वक्त वो मिलेगा तब ही ये सेहतयाब होगा। जब हकीमों की ज़ुबानी भी यही मर्ज पता चला तो हुक्म हुआ कि इस जवान को नहला धुलाकर अच्छी पोशाक पहनाकर दोबारा शहजादी के हजूर में लाया जाए। उसे ले जाया गया, हमाम में नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाए गए और फिर उस परी ज़ात की खिदमत में पेश किया गया। तब वो नाज़नीन तपाक से बोली, तूने मुझे बैठे बिठाए नाहक बदनाम और रुस्वा किया, अब और क्या चाहता है? जो तेरे दिल में है साफ साफ बयान कर। खुशी के मारे मेरा बुरा हाल था, मेरी शक्लो सूरत ही बदल गई। खुदा का शुक्र अदा किया, सारी हकीमी सब दवाइयाँ आप ही आप एकदम जैसे उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। मुझ जैसे मुर्दे में जैसे जान सी पड़ गई। शहजादी कहने लगी, देखो उस वक्त से अब तक मेरे अहवाल में क्या फ़र्क हो गया। मैंने कहा, शहजादी आपकी बदौलत मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे 7 बादशाहों की दौलत मिल गई, एक सल्तनत से ज़्यादा मिल गई। गरीब नवाजी आपने की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी कदम बोसी से सरफराज कीजिए। वो एक लम्हे के लिए मेरी बात सुनकर गोते में गई, फिर कनखियों से देखकर कहने लगी, बैठो। तुम्हारी खिदमत और वफादारी ही ऐसी है कि मेरा दिल नरम पड़ गया। खैर, हमारे दिल पर यह तुम्हारी वफादारी और खिदमत गुजारी दिल पर नक्श हो चुकी है। शायद मेरी ज़िंदगी की अच्छी घड़ी थी, काजी ने निकाह पढ़वा दिया। बाद में इतनी मेहनत और आफत के खुदा ने यह दिन दिखाया कि मैंने अपने दिल का मुद्दा बयान किया,
लेकिन ये जैसे दिल में आरजू उस परी से हम बिस्तर होने की थी वैसी ही जी में रही। दिल में एक तजस्सुस भी था कि आखिर ये परी कौन है, और वो हबशी सांवला सजीला जिसने एक पुर्जे कागज पर इतनी अशरफियों के बदले मेरे हवाले कर दिया, कौन था? और वो ज़ियाफत यानी वो खाना बादशाहों के लायक एक पहर में कैसे तैयार हुआ, और वो दोनों बेगुनाह उस मजलिस में किस तरह मारे गए जिनके सर काट दिए गए, और ये इसकी खफकी और नाराज़गी की वजह क्या है? ये इतनी बेमुरवत क्यों है, और इतनी नाजदारी के बावजूद मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करती है? गर्ज इसी वास्ते बाद रस्में रसूमात अकद के 8 दिन तक बावसफ इस शौक के कसद मुबासरत तक न किया। रात को साथ सोता, दिन को यूं ही उठ खड़ा होता। एक दिन गुस्ल करने के लिए मैंने खवास को कहा कि थोड़ा पानी गर्म कर दे तो नहाऊं। मलका मुस्कुराकर बोली, किस बर्ते पर इतना पानी? मैं खामोश हो रहा, लेकिन वो परी मेरी हरकत से हैरान हुई, बल्कि चेहरे पर आसारे खफकी के नमूदार हुए। यहाँ तक कि एक रोज़ बोली, तुम भी अजीब आदमी हो, या इतने गर्म या ऐसे ठंडे, इसको क्या कहते हैं? अगर तुम में ऐसी कुव्वत ना थी तो क्यों ऐसी कच्ची हवस पैदा की? उसी वक्त मैंने बेधड़क होकर कहा कि इंसाफ शर्त है, आदमी को चाहिए कि इंसाफ में ना चूके। वो बोली, अब क्या इंसाफ रह गया, जो कुछ होना था सो हो चुका। मैंने कहा, वाकई बड़ी आरजू और मेरी मुराद थी सो मुझे मिली, लेकिन मेरे दिल में एक शक और शुबा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी के हालात। वो कहने लगी, तू अपने हद से आगे बढ़ता जा रहा है, गुस्ताख होता जा रहा है। मैंने हंसकर कहा, बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ माफ़ करने का हुक्म है, एक ये भी सही। वो परी नज़रें बदल कर आग बगोला हो गई और बोली, अब तू बहुत सर पर चढ़ा जा रहा है, जा अपना काम कर, इन बातों से तुझे क्या फ़ायदा होगा? मेरी कहानी जानकर तू क्या करेगा? मैंने कहा, दुनिया में अपने बदन की शर्म सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन एक दूसरे का वाकिफ़कार होता है। बस जब ऐसी चीज़ दिल पर रवा रखी तो और कौन सा भेद छुपाने के लायक रह जाता है। जब उसे मेरा इसरार मालूम पड़ा तो कहने लगी, एक शर्त पर बताऊंगी कि मेरा राज तुम्हारे पास हमेशा महफूज रहेगा। मेरे राज का हमेशा ख्याल रखना और इसे आगे किसी को बयान मत करना। मैं लाचार हो चुकी हूँ, इन बातों के कहने में बहुत सी खराबियाँ हैं, लेकिन मैं जानती हूँ तुम ये राज जाने बगैर मुझे नहीं छोड़ोगे। गर्ज बहुत सी ताकीद करने के बाद बोली, मैं बदबख्त मुल्क दमिश्क के सुल्तान की बेटी हूँ, और वह सुल्तानों से बड़ा बादशाह है। सिवाय मेरे कोई लड़का उसके यहाँ पैदा न हुआ। जिस दिन मैं पैदा हुई, माँ बाप के साए में नाजो नेमत और खुशखुर्मी से पली। जब होश आया तब अपने दिल को खूबसूरतियों और नाजनीनों के साथ लगाया। चुनाचे सुथरी सुथरी परीजाद हम जोली उमराजादियाँ मुसाहबत में, और अच्छी अच्छी कबूल सूरत हम उम्र ख्वाह में सहेलियाँ खिदमत में रहती थीं। तमाशा और नाच गाना हमेशा देखा करती। दुनिया के भले बुरे से कुछ सरोकार न था। अपनी बेफिक्री के आलम को देखकर सिवाय खुदा के शुक्र कुछ मुंह से न निकलता था। इत्तफाक से मेरी तबीयत ऐसी बेबज़ा होने लगी कि ना उनके साथ से खुशी होती और ना हम जोलियों के साथ खेलने कूदने से। अजीब सा सौदाई सा मिजाज हो गया। दिल उदास और हैरान था। किसी की सूरत नहीं अच्छी लगती थी, ना बात कहने में अच्छी लगती, ना किसी को सुनने में अच्छा लगता। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी किस्सा चार दरवेश अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए।